دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے قدموں کی چاپ زمین پر نہیں بلکہ دلوں پر سنائی دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا، مگر جب مر جاتے ہیں تو دنیا پلٹ کر کہتی ہے یہ انسان نہیں، یہ زمانہ تھا۔ ایسے لوگوں کو تاریخ صرف پڑھتی نہیں، ان کے سامنے سر جھکا دیتی ہے، اور انہی میں ایک نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ لیکن صلاح الدین ہیرو بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں، قلم تھا۔ ان کے قدموں کے نیچے سلطنت نہیں، مٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جنگ نہیں، حیرت تھی۔ انہوں نے بچپن میں جنگ کے میدان نہیں دیکھے، بلکہ کتابوں، بزرگوں اور صوفیوں کے حلقوں میں بیٹھ کر زندگی سمجھی۔ یہ وہ چیز ہے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں، کہ دنیا کا سب سے بڑا مجاہد اپنی زندگی کے پہلے 20 سال جنگ سے ڈرتا تھا۔ یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ صلاح الدین تلوار سے نہیں، دل سے ہیرو بنے۔ وہ راتوں کو بیدار رہتے تھے، مگر جنگی نقشوں پر نہیں، قرآن کی آیاتوں پر۔ انہوں نے بچپن میں گھوڑے نہیں سدھائے، انہوں نے بزرگوں سے اخلاق سیکھا، فقہ پڑھی، تاریخ سمجھنے کی کوشش کی اور عبادت میں لذت محسوس کی۔ ان کے اندر ایک خاموشی تھی، ایک بہت گہری خاموشی، جس کے اندر ایسی روشنی چھپی تھی جو بعد میں پوری دنیا کے نقشے بدلنے والی تھی۔ یہ روشنی ایک دن بھڑک اٹھی، لیکن اس کا شکار کوئی بادشاہ نہیں، کوئی دشمن نہیں، بلکہ سب سے پہلے ان کی اپنی روح تھی۔ دنیا انہیں تلوار کا ہیرو کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین کی حقیقی جنگ انسانوں سے نہیں تھی، خود اپنے نفس سے تھی، اور اسی جنگ نے انہیں ایسا انسان بنایا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ یہ کہانی شام کے ایک سرد علاقے سے شروع ہوتی ہے، تکریت کے کنارے، جہاں نیلگوں آسمان کے نیچے ایک رات ایک گھر جلا دیا گیا۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو تکریت سے نکالے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا تھا کہ اس شہر سے نکل جاؤ، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ رات تاریک تھی، دریا کے کنارے سرد ہوا چل رہی تھی، اور اسی رات ایک بچے نے پہلی بار دنیا کی ہوا کو چھوا۔ وہ بچہ تھا یوسف بن ایوب، جسے دنیا تاریخ میں جانتی ہے، صلاح الدین ایوبی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، ایک خاندان بے گھر ہو رہا تھا اور ایک بچہ پیدا ہو رہا تھا۔ گویا اللہ کہہ رہا تھا، میں اس بچے کو دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اس کی پہلی سانس ظلم کے خلاف اٹھتی ہوئی ہوا میں رکھ رہا ہوں۔ یہ تھی اس کی پہلی رات، اور اسی رات اس کے خاندان کی قسمت پلٹ گئی۔ اس کے والد نجم الدین اور چچا شیر کو شام کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر صرف بقا کا سفر نہیں، ایک سلطنت کی بنیاد کا سفر ہے۔ صلاح الدین کا بچپن شام کے شہروں میں گزرا، دمشق، حمص۔ وہ ہر جگہ گئے۔ انہوں نے فقر دیکھا، محبت دیکھی، صوفیہ کا راستہ دیکھا، علوم کی خوشبو سونگھی اور زندگی کے کئی باب کھولے۔ وہ بچہ جو بعد میں صلیبیوں کے تخت لرزانے والا تھا، اس وقت اپنے والد کی انگلی پکڑ کر مدارس اور درویشوں کے حلقوں میں بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صلاح الدین بچپن میں نرم دل تھے، ضرورت سے زیادہ نرم۔ وہ چیونٹی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، پرندوں کو دانہ ڈالتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، بزرگوں کی بات ادب سے سنتے اور دنیا کے غموں سے نابلد رہتے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہی نرم دل انسان ایک دن پورے عیسائی یورپ کو ہلا دینے والا ہے۔ صلاح الدین کے اندر ایک عجیب کشش تھی۔ وہ شان و شوکت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن شان ان کے پیچھے بھاگتی رہی۔ وہ کبھی شہرت نہیں چاہتے تھے، لیکن شہرت انہیں تلاش کرتی رہی۔ وہ کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن جنگ انہیں پکارتی رہی۔ اصل کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ان کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوا، نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی وہ انسان تھا جو اپنے وقت کا سب سے خوفناک، سب سے پاک باز،
सबसे इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसके दिल में बैतुल मक़दस की आग जल रही थी। वो रातों को खड़े होकर रोया करता था, या रब, मुझे बैतुल मक़दस आज़ाद करा दे। सलाहुद्दीन इसी शख्स के दरबार में पहुंचे और यहाँ उनकी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ सलाहुद्दीन ने वो चीज़ देखी जो दुनिया के किसी बादशाह में नहीं देखी थी: अदल, तक़वा, जिहाद और अल्लाह की मोहब्बत। ये वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि मैं सिर्फ एक सिपाही नहीं बनूंगा, मैं नूरुद्दीन के ख्वाब का वारिस बनूंगा। उसी दिन उसके अंदर एक शोला भड़का, वो शोला जिसे तारीख ऐमान का शोला कहती है। ये शोला इतना तेज था कि इसने एक आम नौजवान को जंगों का फातेह, इखलाक का शहजादा और उम्मत का निजात दहिंदा बना दिया। सलाहुद्दीन की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आया जब शेर कोह और वो मिस्र की मुहिम के लिए रवाना हुए। वो ज़मीन जिसके बगैर बैतुल मक़दस की जंग मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जो मिस्र का मालिक होता वही शाम, हिजाज और फ़लस्तीन का रास्ता तोड़ या जोड़ सकता था। उसी मिस्र में सलाहुद्दीन ने पहली बार अपने अंदर छुपी हुई सल्तनत देखी। यहाँ उन्होंने न सिर्फ फातमी हुकूमत को ख़त्म किया, बल्कि मिस्र को अहले सुन्नत की सल्तनत में तब्दील कर दिया। ये वो कारनामा था जो किसी बड़े हीरो के बगैर मुमकिन नहीं था, और सलाहुद्दीन ने ये सब अपने इखलाक, फिरासत और हिकमत से किया। आलिम हैरान रह गए, ये वही नरम दिल यूसुफ है? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तकदीर मुस्कुराती है और कहती है, जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहे तो वो कमज़ोर दिलों से भी तख्त खिलवा देता है। सलाहुद्दीन की कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, बिजली की रफ्तार से, हवा के शोर से और तारीख़ के सबसे बड़े तसादुम की तरफ। ये तसादुम है सलीबी जंगों का, और अब सलाहुद्दीन अपनी ज़िंदगी के इस बाब की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ उनका नाम तारीख़ की सबसे बड़ी लड़ाई में लिखा जाने वाला था। दुनिया की तारीख़ बहुत अजीब है। वो बड़ी जंगों के नाम याद नहीं रखती, वो बड़े फातिहों के ताज नहीं संभालती, वो बड़ी सल्तनतों की दीवारें याद नहीं रखती। वो सिर्फ एक चीज़ याद रखती है, वो लोग जिन्होंने खुद को बदलकर दुनिया को बदल दिया। सलाहुद्दीन उन्हीं में था। लेकिन एक हकीकत है जिसे लोग नहीं जानते। सलाहुद्दीन की कहानी का असल हीरो सलाहुद्दीन नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने उसके दिल में वो आग जलाई जिसका ईंधन सिर्फ ईमान था और जिसकी रोशनी बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचनी थी। ये शख्स था नूरुद्दीन ज़िंगी। नूरुद्दीन की आंखों में एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो सोने वालों का नहीं होता, जागने वालों का होता है। वो ख्वाब था मस्जिद अक्सा की आज़ादी। नूरुद्दीन की हर रात इसी दुआ पर ख़त्म होती थी, या अल्लाह, मुझे बैतुल मक़द्दस का फातिह बना दे। लेकिन अल्लाह ने वो इज़्ज़त नूरुद्दीन को नहीं दी, क्योंकि वो मकाम किसी और के मुक़द्दर में था, किसी नर्म दिल, खामोश इंसान के, जिसे दुनिया अभी पहचानती भी ना थी। सलाहुद्दीन, जिसने अभी तक कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी थी, जिसे फ़ौजें भी एक आम सिपाही समझती थीं, जिसकी शख्सियत में हीरो वाली कोई झलक नहीं थी, लेकिन नूरुद्दीन की आंखों ने उसके अंदर वो आग देख ली थी जिसे दुनिया बाद में फ़तह बैतुल मक़द्दस कहकर याद करेगी। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन के सामने सिर्फ एक वज़ीर नहीं था, वो उसके ख्वाब की जान था। नूरुद्दीन जानता था कि एक दिन यही नौजवान तारीख़ को बदल देगा। जिस दिन नूरुद्दीन ज़िंगी ने अपनी खिलाफत की दीवार पर मस्जिद अक्सा की तस्वीर लटकाई, उस दिन सलाहुद्दीन उस तस्वीर को देखते हुए गहरी सांस लेता था। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता था, एक ऐसा दर्द जो ताकत भी दे और बेकरारी भी। वो अपने दिल में कहता था, या रब, क्या ये मैं हूँगा? क्या ये ख्वाब मेरे हाथ से पूरा होगा? मगर उस वक्त वो कुछ ना कहता, सिर्फ खामोश रहता, क्योंकि तारीख़ के बड़े फैसले खामोश दिलों में जन्म लेते हैं। मिस्र की तरफ सफ़र, जहां तकदीर ने अपना दरवाज़ा खोला। शाम से मिस्र का सफ़र आसान नहीं था। ये पानी, सहरा, जंगल, जुग़राफिया, बागियों, फातमी साजिशों और सलीबी हमलों से भरा हुआ रास्ता था। शेर को सलाहुद्दीन के चचा शाम के सबसे बहादुर जर्नैल थे, और उनका साथ देने के लिए नूरुद्दीन ने फौज भेजी। और इस फौज के साथ एक खामोश सा नौजवान, जिसकी आंखों में हैरत थी और दिल में दुआएं, सलाहुद्दीन। मिस्र उस वक्त फातमी खिलाफत के हाथों कमजोर हो चुका था। अंदरूनी बगावतें, वजीरों के झगड़े,
तख्त का इंतशार और सलीबी रियासतों के खुफिया मंसूबे, ये सब मिस्र को तबाह कर रहे थे। नूरुद्दीन जानता था, अगर मिस्र हाथ से निकल गया तो बैतुल मुक़द्दस कभी वापस नहीं आएगा। चनाचे मिस्र की मुहिम सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं थी, ये बैतुल मुक़द्दस की जंग का दरवाज़ा था। जब शेर कोह और सलाहुद्दीन मिस्र पहुंचे तो काहिरा की फिजा में खौफ लटक रहा था। गलियां सुनसान, बाजार खाली, महल्लात में साजिशों की बदबू और लोगों के दिलों में बेयकीनी। ये सब सलाहुद्दीन के लिए नया था, लेकिन वो एक चीज जरूर समझ गए थे कि ये सरजमीन बीमार है और इसे शिफा चाहिए। उन्होंने 3 चीजें मिस्र में देखीं और यही 3 चीजें उनके दिल में सल्तनत की जरूरत का एहसास जगा गईं। नंबर 1, मजहबी इंतशार। 2, सियासी इंतशार। 3, अवामी हुक। उन्होंने सोचा, जिस उम्मत को अक्सा लेना है वो खुद बिखरी हुई क्यों है, पहले हमें इस उम्मत को जोड़ना होगा। यही सोच एक दिन उन्हें मिस्र का सुल्तान बनाएगी। लेकिन इस ख्वाब तक पहुंचने से पहले एक बड़ा धमाका होना था। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल, वो ज़लज़ला जिसने सलाहुद्दीन को जमीन पर गिरा दिया। दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के अंदर कुछ टूट जाता है। जब काहिरा में सलाहुद्दीन को खबर मिली कि नूरुद्दीन जंगी इंतकाल कर गए तो वो चंद लम्हों के लिए हवा में मुअल्लक रह गया। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दुनिया का सबसे मजबूत सुतून गिर गया हो, जैसे जिंदगी एक साए में बदल गई। वो शख्स जिसने तलवार उठाना सिखाया, वो शख्स जिसने अक्सा का ख्वाब दिया, वो शख्स जिसने सलाहुद्दीन की रूह में जंग की आग भड़काई, वो नहीं रहा। रवायत है कि सलाहुद्दीन ने यह खबर सुनी तो अपने खेमे में जाकर लंबी सजदे में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल टूटता रहा और वो बार बार कह रहे थे, या अल्लाह, मैं इस ख्वाब का वारिस बनूंगा, मैं नूरुद्दीन के ख्वाब को पूरा करूंगा। ये लम्हा सलाहुद्दीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ये वो लम्हा था जब एक आम इंसान एक तारीखी जिम्मेदारी उठा लेता है। नूरुद्दीन का इंतकाल सलाहुद्दीन के अंदर एक आतिशफिशां जगा गया, एक किस्म की बेकरारी, एक किस्म की जलती हुई आग। अब अक्सा मेरे जिम्मे है। ये आग कभी बुझी नहीं। यही आग सलाहुद्दीन की पूरी जिंदगी अंदर से जलाती रही और बाहर दुश्मनों को जलाती रही। नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद मिस्र की नजरों ने एक शख्स की तरफ देखा, सलाहुद्दीन। शुरू में उसने इनकार किया। वो कहता था, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन मिस्र कह रहा था, तारीख तुम्हें चाहती है। सलाहुद्दीन ने जब सुल्तान का ओहदा कबूल किया तो काहिरा की जमीन कांप गई, न खौफ से बल्कि हैरत से, क्योंकि पहली बार एक ऐसा हुक्मरान आया था जो दौलत को नहीं छूता था, महल्लात में नहीं सोता था, महल की बजाय मदरसे में सोता था, और जो पूरी सल्तनत का बादशाह था मगर एक चादर, 2 कपड़ों और एक तलवार के सिवा कुछ न रखता था। क्योंकि सलाहुद्दीन जानता था, जो बैतुल मुक़द्दस लेने जा रहा है वो महलों का नहीं, ईमान का बादशाह होगा। और फिर उन्होंने मिस्र को बदल दिया। मसाजिद की इस्लाह, उलमा की इज्जत, फातमी अकायद का खात्मा, सुन्नत नबवी की वापसी, अदल का निज़ाम, फौज की तरबियत और पूरे मुल्क को एक नया ईमानी खून देना, ये सब कुछ सलाहुद्दीन ने सिर्फ 2 साल में कर दिखाया। इन 2 सालों में सलाहुद्दीन के अंदर एक नया इंसान पैदा हो चुका था, जिसकी रूह में नूरुद्दीन की दुआ और दिल में अक्सा का नक्श। यहाँ से सलाहुद्दीन की वो शख्सियत सामने आती है जिसे दुनिया इस्लाम का अजीम तरीन हीरो कहती है। लेकिन असल मार्का अभी बाकी था, और वो मार्का सल्तनतों के दरमियान नहीं, दिलों के दरमियान होने वाला था। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक ख्वाब थे। एक सुल्तान जो महलों का नहीं, अक्सा का सुल्तान बनने जा रहा था। मगर इस रास्ते में पहली दीवार था सलीबियों का इत्तेहादी निज़ाम। यूरोप के ईसाई बादशाह फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अरादेरा, यरूशलेम, अंताकिया, ट्रैपलस, किरक, शोभक
सब एक साथ जुड़े हुए थे। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये एक पूरी दीनी सल्तनत थी जिसने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करते ही 70,000 मुसलमान कत्ल किए थे। खून अब भी मस्जिद अक्सा के पत्थरों के दरमियान खुश्क शक्ल में मौजूद था। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब कटे थे और दुनिया खामोश रही थी। ये खून सलाहुद्दीन के दिल में आग बन गया था। वो जानते थे बैतुल मुक़द्दस सिर्फ तलवार से नहीं मिलेगा, बैतुल मुक़द्दस पहले उम्मत के दिलों में जीतना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया। उम्मत को मुत्तहिद करना सबसे मुश्किल जंग। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि मुसलमान अपने ही फिरकों, कबाइल, हुक्मरानों और ज़ाती मफादात में बिखरे हुए हैं। शाम अलग, मिस्र अलग, जजीरा अलग, यमन अलग, कुर्द अलग, तुर्की अलग, अरब अलग। किसी को अक्सा याद ही ना था। ये बिखरी हुई उम्मत कभी बैतुल मुक़द्दस ले ही नहीं सकती थी। तो सलाहुद्दीन ने पहले दिल जोड़े। उलमा को इज्जत, फुकरा को सहारा, मसाजिद को आबाद, मदारिस को मजबूत, अदल का निज़ाम नाफिज, नाजायज़ टैक्स ख़त्म, ज़रई ज़मीनें वापस अवाम को, और सबसे बढ़कर जिहाद की रूह वापस लाना। ये सब कुछ सलाहुद्दीन ने सिर्फ 2 साल में कर दिखाया। इन 2 सालों में सलाहुद्दीन के अंदर एक नया इंसान पैदा हो चुका था, जिसकी रूह में नूरुद्दीन की दुआ और दिल में अक्सा का नक्श। यहाँ से सलाहुद्दीन की वो शख्सियत सामने आती है जिसे दुनिया इस्लाम का अजीम तरीन हीरो कहती है। मगर असल मार्का अभी बाकी था, और वो मार्का सल्तनतों के दरमियान नहीं, दिलों के दरमियान होने वाला था। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक ख्वाब थे। एक सुल्तान जो महलों का नहीं, अक्सा का सुल्तान बनने जा रहा था। मगर इस रास्ते में पहली दीवार था सलीबियों का इत्तेहादी निज़ाम। यूरोप की ईसाई बादशाह फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अरदेरा, यरूशलेम, अंताकिया, ट्रैपलस, किरक, शोभक सब एक साथ जुड़े हुए थे। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये एक पूरी दीनी सल्तनत थी जिसने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करते ही 70,000 मुसलमान कत्ल किए थे। खून अब भी मस्जिद अक्सा के पत्थरों के दरमियान खुश्क शक्ल में मौजूद था। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब कटे थे और दुनिया खामोश रही थी। ये खून सलाहुद्दीन के दिल में आग बन गया था। वो जानते थे बैतुल मुक़द्दस सिर्फ तलवार से नहीं मिलेगा, बैतुल मुक़द्दस पहले उम्मत के दिलों में जीतना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया। उम्मत को मुत्तहिद करना सबसे मुश्किल जंग। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि मुसलमान अपने ही फिरकों, कबाइल, हुक्मरानों और ज़ाती मफादात में बिखरे हुए हैं। शाम अलग, मिस्र अलग, जजीरा अलग, यमन अलग, कुर्द अलग, तुर्की अलग, अरब अलग। किसी को अक्सा याद ही ना था। ये बिखरी हुई उम्मत कभी बैतुल मुक़द्दस ले ही नहीं सकती थी। तो सलाहुद्दीन ने पहले दिल जोड़े। उलमा को इज्जत, फुकरा को सहारा, मसाजिद को आबाद, मदारिस को मजबूत, अदल का निज़ाम, नाजायज़ टैक्स ख़त्म, ज़रई ज़मीनें वापस अवाम को, और सबसे बढ़कर जिहाद की रूह वापस लाना। जब पहली बार सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि हम अक्सा लेने जा रहे हैं, तो पूरी उम्मत के सीनों में एक आवाज़ गूंजी कि ये मुमकिन है। यही वो चीज़ थी जो किसी और हुक्मरान में नहीं थी। वो दिल जीत सकते थे। लोग उनके लिए नहीं, अक्सा के लिए मरते थे। सल्तनत मजबूत हुई, लेकिन सलीबी भी जाग गए। रेमंड, ग्वाई और रेनॉल्ड, सलीबियों के 3 इब्लीस। मशरिकी यूरोप में एक नाम गूंज रहा था, रेनॉल्ड ऑफ शातिलियन। वो शख्स जिसके बारे में हर मुअर्रिख लिखता है, अगर दुनिया में एक शैतान था तो यही था। इसी ने मक्का और मदीना पर हमले की कोशिश की, इसी ने हाजियों के काफिले लूटे, इसी ने कहा था मैं देखूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बचाने आते हैं या नहीं। यह जुमला तारीख का सबसे बड़ा गुस्ताखाना जुमला था। जब सलाहुद्दीन ने यह सुना तो उनकी आंखों में पहली बार नरमी की जगह आग उतर आई। उन्होंने कसम खाई, रेनाल्ड मेरे हाथों मारा जाएगा, अल्लाह की कसम यही होगा। ये कसम हत्तीन की रात पूरी होनी थी।
सलाह उद्दीन ने जंग के बजाय सबसे पहले दुश्मन के सांस पर हमला किया। किले किले, शहर शहर, एक एक करके सलीबी सल्तनत खिसकती गई। नाबुलस वो रात जब सलाहुद्दीन के लश्कर जबले हतीन की तरफ बढ़े, वो रात तारीख की सबसे खामोश रात थी। चांद आसमान पर था, हवा में रेत के जर्रे, सिपाहियों के घोड़े धीरे धीरे चल रहे थे। सलाहुद्दीन दूर आसमान को देख रहे थे, वहां जहां बैतुल मक़दस की फसीलें दरिया की तरह चमक रही थीं। इन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, कल सुबह मैं तारीख लिखूंगा या शहादत पाऊंगा, इन दोनों के सिवा कुछ नहीं। हतीन का मैदान आग का मैदान बन चुका था। सलेबी प्यास से मर रहे थे क्योंकि सलाहुद्दीन ने पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था। ये वही जंगी तदबीर थी जो आज भी दुनिया के अस्करी इदारे पढ़ाते हैं। सुबह हुई और दोनों लश्कर आमने सामने आए। एक तरफ सलेबी बादशाह गाई, उसके शिवालियर रेनॉल्ड और यूरोप के जर्नैल जिनकी जिरहें सूरज में चमक रही थीं। दूसरी तरफ एक सादा सुल्तान, एक घोड़ा, एक अबाया, एक तलवार और एक दुनिया से मजबूत ईमान। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, मुजाहिदीन, आज जन्नत हमारे ऊपर झुक आई है, बस एक धक्का दो, बाकी अल्लाह का काम है। और फिर दुनिया ने वो दिन देखा जिस दिन सलेबी तारीख अपनी मौत लिख रही थी। तीर बरसने लगे, आग की बारिश हुई, रेत के तूफान उठे और मुसलमान अल्लाहु अकबर की गूंज के साथ उनके अंदर घुस गए। सलेबी घबराहट में भागने लगे, घोड़े गिरने लगे, हेलमेट टूटने लगे, नेज़ें बिखरने लगे और सलाहुद्दीन की फौज समंदर की तरह बहती हुई उनके दिलों में घुस गई। रेनॉल्ड पकड़ा गया। सलाहुद्दीन ने उसे देखा, वही शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, जो हाजियों को मारता था, जो मुसलमानों की औरतों को बेचता था। सलाहुद्दीन ने उसके सामने पानी रखा। रेनॉल्ड ने पीने की कोशिश की। सलाहुद्दीन ने फौरन हाथ हटा लिया। तुझे मैं पानी नहीं दूंगा, तू अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख है। फिर सलाहुद्दीन आगे बढ़े, तलवार उठाई और एक ही ज़र्ब में उसका सर तन से जुदा कर दिया। ये सलाहुद्दीन का पहला शख्सी कत्ल था। इस लम्हे सलाहुद्दीन सिर्फ एक सुल्तान नहीं, एक मुजाहिद बन गए थे। हतीन का मैदान सलेबी लाशों से भर गया था। बादशाह गाई गिरफ्तार, तमाम जर्नैल कैद और सलेबी सल्तनत की रीढ़ टूट चुकी थी। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, बैतुल मुक़द्दस। और अब सलाहुद्दीन उस तरफ बढ़ रहे थे जिसे दुनिया तारीख का सबसे पाक लम्हा कहती है। हतीन के मैदान में सलेबी सल्तनत की रीढ़ टूट चुकी थी। जमीन खून से सुर्ख थी, हवा में शिकस्त की जलती बू थी और सूरज के गुरूब होते हुए साए सलाहुद्दीन के घोड़े के कदमों से शिकस्त खाते जा रहे थे। दुनिया ने एक दिन में देखा कि वो सल्तनत जो 88 साल से बैतुल मक़दस पर काबिज थी, जिसने मुसलमानों के खून से मस्जिद अक्सा की सीढ़ियां रंग दी थीं, जिसने बच्चों को भालों पर चढ़ाया था, जिसने औरतों को गुलाम बनाया था, जिसने मुकद्दस शहर को आग और लहू से भर दिया था, वो अब खाक में गल रही थी। सलाहुद्दीन के सामने सिर्फ एक नाम था, अल कुद्स, अल कुद्स, अल कुद्स। इसकी रूह में एक ही सदा गूंजती थी, ये शहर मेरा नहीं, उम्मत का नहीं, ये शहर अल्लाह का है। और यही ईमान इसे नाकाबिले रोक बना रहा था। सलाहुद्दीन के लश्कर बैतुल मक़दस के साये में दाखिल हुए। मस्जिद अक्सा के सुनहरे गुंबद पर शाम की रोशनी पड़ रही थी और सलेबी सिपाहियों में खौफ की लहर चल रही थी। यरूशलेम के हुक्मरान पेट्रियार्क हेरक्युलस सलाहुद्दीन के कासिद के सामने लरज रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर तुम शहर पर चढ़ाई करोगे तो हम यहाँ के हर मुसलमान को कत्ल कर देंगे, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को। सलाहुद्दीन ने खामोशी से सुना, फिर बस एक जुमला कहा, मैं इस शहर में वो नहीं करूँगा जो तुमने किया था। ये शहर कत्ल के नहीं, रहमत के लिए आज़ाद होगा। ये जुमला दीवारों में गूंज गया और सलेबी जान गए कि सुल्तान का दिल लोहे का नहीं, नूर का है। मुहासरा बढ़ा, शहर थक गया
اور آخرکار دروازے کھل گئے۔ 27 رجب 583 ہجری، 12 اکتوبر 1187، وہ دن جب تاریخ بدل گئی۔ صلاح الدین آج بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہونے والے تھے۔ وہ لمحہ تاریخ کے سب سے پاک لمحوں میں تھا۔ صلاح الدین نے نہ گھوڑے پر سوار ہو کر، نہ جنگی لباس میں، بلکہ سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے بیت المقدس میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ اس کی فوج اللہ اکبر پڑھ رہی تھی، اور شہر میں 88 سال بعد پہلی بار مسجد اقصی میں اذان دی گئی۔ وہ اذان آسمان کو چیر گئی، وہ اذان زمین کو زندہ کر گئی، وہ اذان امت کو جگا گئی۔ کئی بزرگ زمین پر گر کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے یہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صلاح الدین مسجد اقصی کے سامنے پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ فتح تیرے کرم سے ہے، میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ جب صلیبیوں کو قید کیا گیا تو شہر کے لوگ چیخ رہے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا تھا، انہیں بھی قتل کرو۔ لوگ بدلہ مانگ رہے تھے، انتقام مانگ رہے تھے، خون مانگ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین خاموش رہے۔ پھر وہ شہریوں کی طرف مڑے اور کہا، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تمہارے جیسے نہیں۔ تم نے ہمارے معصوم قتل کیے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو خاموش کر دیا۔ صلاح الدین نے عورتوں کو جانے دیا، بچوں کو آزاد کر دیا، بوڑھوں کے لیے دروازے کھول دیے، اور ضرورت مندوں کو پیسہ دے کر رخصت کیا۔ ایسا اخلاق، ایسا معافی، ایسا رحم دنیا کی جنگوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یورپ ابھی تک حیران ہے کہ ایک فاتح اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتا ہے، مگر صلاح الدین جانتے تھے، فتح خون سے نہیں، اخلاق سے لکھی جاتی ہے۔ بیت المقدس کی فتح نے پورے یورپ کو آگ میں جھونک دیا۔ گرجوں میں گھنٹیاں بج رہی تھیں، مسلموں نے یروشلم لے لیا، وہ صلیب کی توہین کر رہے ہیں۔ ایک سلطان پوری عیسائیت کے خلاف کھڑا ہے۔ یورپ کے 3 بڑے بادشاہ جمع ہوئے، رچرڈ شیردل انگلینڈ، فریڈرک باربروسا جرمنی، فلپ آگسٹس فرانس۔ تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، اور یہ اب تک کی سب سے طاقتور جنگ تھی۔ رچرڈ اور صلاح الدین کا مقابلہ انسانیت کے 2 پہاڑوں کا مقابلہ تھا۔ دونوں کی شجاعت آج بھی دنیا کی جنگی کتابوں میں لکھی جاتی ہے۔ رچرڈ شیر کی طرح جنگ کرتا تھا، اور صلاح الدین فرشتہ بن کر رحم کرتا تھا۔ ایک دن رچرڈ گرمی سے بے ہوش ہو گیا۔ صلاح الدین نے برف، پھل اور دوائیں بھجوائیں۔ رچرڈ حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں کبھی اپنا ملک چھوڑوں تو میں چاہوں گا کہ میرا سلطان صلاح الدین جیسا ہو۔ دنیا نے ایسا احترام کبھی کسی دشمن سے نہیں دیکھا۔ یہی صلاح الدین کی عظمت تھی۔ وہ دشمن کو بھی عظمت دینا جانتے تھے۔ ہر رات صلاح الدین مسجد اقصی کی محراب میں بیٹھتے اور تلاوت کرتے، خدا کے سامنے گر جاتے، یا اللہ، جب تک میں زندہ ہوں میں اس شہر کی حفاظت کروں گا۔ ایک رات قاضی فاضل نے دیکھا کہ صلاح الدین تنہا بیٹھے ہیں، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں سرخ اور ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، سلطان، آپ کیوں نہیں سوتے؟ صلاح الدین نے کہا، جب میرے دشمن جاگ رہے ہیں تو صلاح الدین کیسے سو سکتا ہے؟ یہ جملہ آج بھی دنیا کے ہر رہنما کے لیے شرمندگی کا سبب ہے۔ جب آخری جنگیں ختم ہو گئیں اور صلیبی پیچھے ہٹ گئے اور ملک بھر میں امن قائم ہو گیا تو صلاح الدین کا جسم ٹوٹنے لگا۔ چند مہینوں میں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ چل بھی نہیں پاتے تھے، لیکن پھر بھی ہر نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ آخری رات جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ صبح کے وقت ان کا چہرہ نوری چادر کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، مسکرائے اور کہا، یا اللہ، میں نے بیت المقدس کا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کیں
اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب اس کی الماری کھولی گئی تو اندر کوئی خزانہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی جوہر نہیں، صرف ایک تلوار، ایک ڈھال، ایک چادر، 2 کپڑے، ایک بوسیدہ جائے نماز۔ خزانچی نے کہا، سلطان کی تجہیز و تکفین کے لیے بیت المال میں بھی کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک بادشاہ جس نے 3 سلطنتیں فتح کی تھیں، وہ اپنے پیچھے 1 درہم بھی نہ چھوڑ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا اصل خزانہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتا ہے۔ یہ تھے صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس کا فاتح، ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں اور پھر صدیوں تک پوری امت کا رہنمائی کا چراغ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ایسے ہیرو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہیں، تو نور حرمین کا ساتھ دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس روشنی کو پھیلائیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ امت کی پہچان ہے، اور نور حرمین اسی پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔